Good morning, dear students. In the previous lectures, we have completed one chapter in the biology section, and that was the fundamental unit of life. In this chapter, we have discussed about the cell and various components associated with the cell. For example, we have discussed about the cell wall, cell membrane, cytoplasm and the nucleus. We also discussed that in the cytoplasm there are different types of organelles that will be situated, and the function of each organelle was being discussed by us. That is, there is cell, and within the cell are the cell organelles, which are membrane bound organelles, and these organelles will be performing specific functions. Now we are moving to a little higher level of classification, because we know that the cells will be combining with each other to form the structures known as tissues. जो cells होते हैं वो एक दूसरे के साथ combine होके they will be forming the higher structure which is known as tissues. Tissues जो होते हैं वो जो similar tissues जो हैं they will be combining with each other to form an organ, and organs will be coordinating in their activity to form organ system. So this is the chapter about that cells when combined together and perform a specific function together, they will be forming the tissues. So we are going to discuss about various types of tissues that are present in the plants as well as in the animals. हमें पता है that tissues जो होते हैं वो plants में भी होते हैं और animals में भी होते हैं, और दोनों ही tissues जो हैं वो अलग होते हैं. ठीक है, तो हम ये सारे tissues के बारे में डिस्कस करने वाले हैं in this chapter. But before that, let us have a look on the introduction of this chapter. So let us have a look on the introduction of this chapter. Now we know that organisms are of two types. Some organisms are made up of single cell, which are known as unicellular organisms. And some organisms are made up of more than two or more cells, or they are made up of a bunch of cells. They are known as multicellular organisms. So single-celled organisms will be performing all the activities on their own, right? So for example, when we say that the organisms that are made up of single cell are known as unicellular organisms. मतलब ऐसे organisms जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं, राइट? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. और सिंगल सेल्ड में हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ओके. So organisms which are made up of a single cell, they are known as what? Unicellular organism. For example, amoeba. तो amoeba के अंदर all the basic functions are performed by the single cell, right? Like amoeba, where all the basic functions are performed by single cell. क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही एक ही सेल से बना है, तो इनके अंदर एक्टिविटी कह दे जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? O2 और CO2 को एक्सचेंज करना, या तो फिर उनकी मूवमेंट है, या तो फूड इनटेक है, राइट? कोई फूड को ट्रैप करना है, किसी को ग्रास्पिंग करना है. तो ये सारे एक्टिविटीज जो है वो कौन करने वाला है? सिंगल सेल. सो एक्टिविटीज लाइक we have mentioned that all basic functions are performed by a single cell, like food intake, or you can say gaseous exchange, right? या तो हम मूवमेंट कहें,
या तो एक्सक्रीशन का है। ये सारी ही एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल ही सेल। बट इज दिस थिंग हैपनिंग इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? नो। Multicellular organisms are made up of millions of cells. So these cells will be performing only specialized activities. हर एक सेल हर एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता होगा. Cells will be doing more specific functions. And as the cell is allotted a specific function, it is going to do that function more efficiently. वो और अच्छे से वो काम कर पाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क दिया गया है, राइट? तो यहां पे व्हाट डू वी मेंशन दैट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत से सेल्स होते हैं। अब ये सारे सेल्स जो होते हैं दे विल बी परफॉर्मिंग, दीज सेल्स विल बी परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी और यू कैन से स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये रैंडमली कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये जो सेल्स होते हैं एक्चुअली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये सारे ही सेल्स रैंडमली काम नहीं करेंगे। इंस्टेड ये सेल्स का फंक्शन कैसा होता है? सेल्स विल बी स्पेशलाइज्ड इन द एक्टिविटी, स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स होते हैं, तो मसल सेल्स का फंक्शन क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट हमें करनी है, राइट? जैसे कि हमें यहां से वहां कहीं चल के जाना है, तो उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं हमारे मसल्स। तो मसल सेल्स का फंक्शन, मसल्स का स्ट्रक्चर, मसल सेल का फंक्शन वो ऐसे बना हुआ होगा कि उसका मेन फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ताकि मूवमेंट पॉसिबल हो, राइट? तो स्केलेट, जैसे कि हम मसल सेल्स की बात करते हैं, तो मसल सेल्स का फंक्शन होता है मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारी हर एक एक्टिविटी होती है, राइट? इवन इफ इट इज मूविंग योर हैंड्स और इट इज वॉकिंग, वो मूवमेंट किसकी वजह से? मसल की वजह से। तो मसल सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या हुआ? मूवमेंट, राइट? वैसे ही द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ नर्व सेल का फंक्शन क्या हुआ? सेंड द मैसेजेस in the form of impulse. Okay? तो मैसेज सेंड करना मतलब ब्रेन से वो पर्टिकुलर ऑर्गन को डायरेक्ट करना कि ये काम करना है, दैट यू हैव टू मूव इन दिस वे। तो उसके लिए जो मैसेज मिलना चाहिए वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? नर्व सेल। तो मसल सेल का मूवमेंट का काम रहता है, नर्व सेल का इंपल्स भेजने का काम रहता है, मैसेज भेजने का काम रहता है, राइट? क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन है, और brain is made up of millions of nerve cells. The nerve cells will be directing the activities which you perform. अगर हम blood की बात करें तो blood क्या करेगा? It will be transport the nutrients, transport the hormones, transport the waste material, right? तो ब्लड का जो है, ब्लड और कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, ब्लड का एक ही काम है, सब चीजों को हर एक सेल तक पहुंचाना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, न्यूट्रिएंट्स को भेजता है टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसलोकेट करता है, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करता है। तो ब्लड का काम कैसा है? ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है? तो जैसे मसल का काम मूवमेंट है, नर्व सेल का काम इंपल्स भेजना है, ब्लड का काम जो है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, तो या तो सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का है। तो इनके फंक्शंस कैसे हुए? स्पेशलाइज्ड हुए, ठीक है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड
एंड वाटर। प्लांट में एक्चुअली वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसे कहा जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या करता है, इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग, व्हाट डज इट ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। तो ये भी स्पेशलाइज हुआ। तो प्लांट्स में हम क्या कहना चाह रहे हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हायर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फंक्शंस जो है वो कौन परफॉर्म करता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज स्पेसिफिकली डूइंग दैट एक्टिविटी ओनली, राइट। जबकि यहाँ पे यूनिसेल्युलर अमीबा में एक्सचेंज भी वही करता है, मूवमेंट भी वही करता है, ट्रांसपोर्ट भी वही करता है। सो सिंगल सेल इज डूइंग ऑल द थिंग्स, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए सारे सेल्स की एक्टिविटी जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है। इसलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑब्जर्व, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑब्जर्व। मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो भी काम है वो काम कैसा है, डिवाइडेड है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क रहता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये फंक्शन पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी नॉट जस्ट अ सिंगल सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब हम मसल सेल की बात करते हैं तो एक मसल सेल मूवमेंट का काम करता है, बट एक्चुअली पूरी जो मसल मूव हो रही है इट इज अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ मेनी मसल सेल्स, ओके। तो एक मसल सेल नहीं होता, several muscle cells will be grouping together to perform that function of contraction and relaxation. Several nerve cells will be involved in the process of sending the message. Though one nerve cell does the same, but one nerve cell cannot reach the whole body. So many nerve cells will be grouped together to perform the message sending process. सेम वे जब हम ब्लड की बात करें तो ब्लड ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, पर ब्लड में भी कंपोनेंट्स होते हैं ये जो इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए बने गए। सो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन multicellular organisms, the cells with specialized functions, the cells with specialized functions are grouped together. They are grouped together. मतलब जो cells के ऐसे specific function हो, मतलब all those cells involved in contraction and relaxation and helping in movement will be grouped as muscle. तो muscle क्या है, एक पूरा tissue है, right? blood क्या है, एक पूरा tissue है, नर्वस सिस्टम क्या है, एक पूरा टिश्यू है, राइट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने वाले जो सेल्स हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, एंड दीज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द tissues. They are grouped together to form the tissue. So what is the definition of tissue? We can say that the cells which are similar in structure work together for a specific function. Work together for a specific function, are grouped together and form what? They form the tissue. तो टिश्यू कब कहा जाता है, तो जो सेल्स सिमिलर होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने शेप साइज में, इन सेल्स को साथ में ग्रुप कर दिया जाता है जो मिलके एक पर्टिकुलर परफॉर्म करेंगे फंक्शन. दे विल बी परफॉर्मिंग सम specific function, right? And so when we say that nervous system या muscle या blood, तो blood क्या है, टिश्यू है, vascular टिश्यू है, right? xylem phloem together मिलके काम करते हैं तो वो एक टिश्यू है. तो यहाँ पे vascular टिश्यू, blood, muscle cells, muscles जो है वो सब टिश्यू के एग्जाम्पल है. तो टिश्यू कब बनता है, जब ऐसे मसल सेल्स
जो सारे ही दिखने में सिमिलर हैं, जब वो एक ग्रुप बना लेते हैं एंड दे विल बी परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसे क्या कहा जाता है? टिश्यूज। तो ये है इंट्रोडक्शन दैट व्हाट आर टिश्यूज, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. What is the difference in the activity of unicellular organism and multicellular organism? That is the introduction of the chapter. Next we will move on to what are the differences in the tissues of plants and the tissues of animals. Are they both same or are they both different? That we will discuss in the next class.